Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What I'm saying is, from few days we were building the concept, and we were able, because I believe in going back and forth, not just delivering lecture and that's it, and we move to the next lecture. No, not like that. I believe in going back and forth, giving little concept first, understanding concept, coming back to it then strongly, and making it, cementing it with a perfection. If we do the circuitry and all in a first go, then it won't help. It is this that way people don't understand, right? So we have a kind of an understanding now what is direct cache, what is associative cache, what is set associative cache. Okay, now today there should be no confusions when we talk about addressing, how to address now, which bits among the address, we have the address bits, which bits are used for block, what is that, which is for used for tag, and which one is for whatever we have there. So, and why we are doing this, you should have a clear idea now, right? So we said that we have a direct cache, even though still you have a questions, Otufa may have little confusions. You can just watch those videos, and then watch this video also back after that. Okay, back to back, these 2-3 videos, you will be all good. So what I'm saying is, we had a direct cache, and okay, I don't have a pen attached with this. Let me put on the pen. Okay, is it coming? Yeah, here we go. So what I am saying is that we have a direct cache, because I told you we have 2-3 ways of doing this: either direct, either associative, or set associative. Obed, are we having the concept of this associative? Are we having the concept of direct associative and set associative? What is the difference? Yesterday's class I didn't give it. Huh? You were absent? Yeah, I was not able Oh, to no, join. no problem, no problem, Internet no issues problem, I had. no problem. Don't worry. Watch the videos. You are a good student, I know. Just watch the other videos, and you will be good. So, Kazim, can you tell us where is Kazim? Is Kazim here? I'm not seeing the Yes, sir. Kazim. Oh, Kazim is here. I'm here, Can sir. you tell me the difference between direct associative and set associative? Direct mapping map is the blocks into the best in the possible. मतलब ये मैप ऐसे करता है, इसमें कैशे को पहले जो उसको लाइन मिलेगी उस कैशे की लाइन में उसी में डाल देगा, और जो एसोसिएटिव में होगा तो उसमें से कहीं पे भी वो डाल सकता है इसमें, लेकिन उसमें हमें ये इशू आता है कि ढूंढने में दिक्कत होती है, तो उसमें हम इसमें अटैच करते हैं क्या इसमें अटैच क्या नाम है, कंपैरेटर्स हम अटैच करते हैं उसमें। उसके बाद जो सेट एसोसिएटिव है वो जो इसमें थ्रैशिंग आती है डायरेक्ट मैपिंग में, तो वो उसको ओवरकम करता है। जो उसमें ड्रॉबैक्स आती थी हमें थ्रैशिंग की, उसमें वो ओवरकम करते हैं। Thrashing is a different thing. Thrashing is a different thing, not thrashing. Yeah, you are right. Moomin, can you tell us a little bit? Because I want everybody on board before I start saying again, right? I will be explaining again to cement, because एक बारी से इतना complex जो topic है cover नहीं होता. I will come back to it. But like Kazim has told us now a lot of things. Okay, can Moomin you add up things more? Mohammad Haris, you should put on your camera, because I really want some few people stay all the time, like Otufa, like Haris. Moomin, can you open up the mic or speak up or not? No problem. Anyone more can add up, raise your hand, or I will start explaining. Don't worry. Anyone who want to say something, to give better confidence? Anyone who can say, open up the mic and start talking? Anyone who can add up things? Not an issue. Anyone who can say few things about it, what we have done from 2-3 days now. I think the 3, 4, 5 days I'm on the cache now, I guess. This was the whole week of cache memory. Okay, so what we have in a direct, well, the general concept is in a direct map is that we have a specific blocks like this one. Let me use a black pen here. Let me use the black. Let me use this one, highlighted one. We use a specific block for the specific blocks in the cache. Okay, I am saying only these,
the specific blocks we have can go into the specific block. So अगर मैं ये जो मैंने यहाँ पे ये किए, ये इसको हाईलाइट किए, सिर्फ ये जा सकते हैं इस रेड के अंदर, ये सिर्फ इस रेड के अंदर जा सकते हैं. We have a specific block for a specific. तो उसमें हमें ये पंगा आ गया कि अगर हमारे पास सिर्फ ये वाले आ रहे हैं, जैसे 0 वाला है, ये 4 वाला है, ये 8 वाला है और ये 12 वाला है. अगर हमें एड्रेसिंग आ गई 0 4 8 12 0 4 12 8 4 12, यही वाले आ रहे हैं, तो पहले 0 आ गया, मैंने लोड किया इसमें, ठीक है, 0 में, बिकॉज ये सिर्फ इसमें जा सकता है, बाकी में नहीं जा सकता है. तो डायरेक्ट ने इसको क्या किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है. तो उसके बाद 4 आ गया, 4 कहीं और नहीं जा सकता. कैश हालांकि खाली है सारी की सारी, ये और भी बड़ी भी हो सकती है, फिलहाल हमने 4 बाइट्स की, बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है. लेकिन मेरा यहाँ पे डायरेक्ट का ये है कि 0 4 8 एंड 12 इट कैन ओनली गो इनटू द 0 ब्लॉक. ओके, दैट मींस कि 4 को भी कहाँ जाना है, 0 ब्लॉक में. हालांकि सारी कैश खाली है, इट इज ऑल एम्प्टी, बट मेरे पास स्पेस ही नहीं है. वहां पे 4 अगर मुझे यहाँ पे लोड करना है, वहां 0 है, पहले इसको रिप्लेस करना है, 4 को लगाना है इसमें, ठीक है ना. अब आ गया 8 में कह रहा हूं बस ये जा सकता है सिर्फ 0 में, क्योंकि 0 4 8 12 इनकी जगह है 0 ब्लॉक ऑफ कैश. हालांकि रैम कैश सारी खाली, ठीक है ना, फिर भी इसको इसी में जाना है, दैट इज आई हैव टू रिप्लेस इट. तो मुझे कैश मिसेस हर बार आ रहा है, हालांकि कैश सारी की सारी एम्प्टी है, सिर्फ एक ब्लॉक भरा हुआ था, ठीक है ना. अगर हमारे पास 1 KB और 1 MB कैश है, उसमें से सिर्फ एक ही ब्लॉक भरा था, बाकी सारी खाली थी, मुझे तब भी मिस आ रहा है. सो इसलिए हमने कहा नहीं, एसोसिएटिव करेंगे. एसोसिएटिव में हमने क्या कहा, वी सेड इन एसोसिएटिव दैट एनी कैश ब्लॉक कैन गो एनीवेयर. यानी कि अगर मुझे ऐसे आता है अब 0 4 8 12, तो 0 कैन गो हियर, 4 कैन गो हियर, 8 कैन गो हियर, 12 कैन गो हियर, ठीक है ना. सो एनी कैश, एनी RAM block, main memory block can go to the any part of the cache. Now how we then find it? यहां हम फाइंड कर रहे हैं इसको ऐसे, जो हमारा यहाँ पे है, हम कैसे इसको फाइंड करते हैं. We said कि जो जनाब हमारी पहली 2 बाइट्स है, ये जो 0 0 है, ठीक है ना, ये हमें बताएंगी कौन सा ब्लॉक में जाएगा. ये अगर ये कैश है, कैश के साथ हमने टैग रखा है और इंडेक्स रखा है. एड्रेसिंग मैकेनिज्म इज लाइक दिस. हमारे पास कैश मेमोरी है जहां डेटा जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे टैग है और इंडेक्स है. जो मेरा यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक्स है, कोई भी मेमोरी ब्लॉक है, जैसे मैं ये उठा के लेता हूं, इट इज 0 1 1 0. इसकी पहली 2 जो बिट्स है वो मुझे बताएंगी कि इस कैश के अंदर कौन सा ब्लॉक, बिकॉज इट इज सेइंग 1 0, दैट मींस सेकंड ब्लॉक. इट कैन गो सिर्फ इसमें जा सकता है, ग्रीन में, क्योंकि ये 1 0 है. अगर ऐसा ही एड्रेस कोई भी होगा, जैसे ये वाला है, नाउ इट इज 1 0 1 0, चाहे यहाँ पे होगा 1 1 1 0, ठीक है, चाहे यहाँ पे होगा 0 0 1 0, लेकिन जिसके भी, ये मैंने कुछ एड्रेसेस यहाँ पे लिखे, जिसके भी लास्ट में 1 0 आता है, ठीक है ना, जिसके भी लास्ट में 1 0 आता, दे विल गो इनटू द 1 0 ब्लॉक. जिसके लास्ट में 1 1 आएगा, फॉर एग्जांपल 0 0 1 1, जैसे ये है, इसके लास्ट में क्या आ गया, इट कैन गो ओनली इन दिस ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक 1 1 ब्लॉक, यहाँ पे जाएगा, है ना. वो कोई सा भी एड्रेस हो इसमें से जिसको लास्ट में 1 1 1 1 किसको आ गया, एक इसको आ रहा है, 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 ठीक है ना. तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों के चारों सिर्फ जा सकते हैं इसमें, लास्ट ब्लॉक में, क्योंकि जिसका 1 1 एड्रेस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे है ना एड्रेस यहाँ पे है ना, दिस इज 1 1, दिस इज 0 0. सो दिस इज कॉल्ड एज एन इंडेक्स. इंडेक्स का मतलब है कौन सी लाइन, इसको लाइन भी बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स को लाइन लिखते हैं इंडेक्स को, कि कौन सी लाइन किसकी, कैश की, वहां पे है. यानी कि इनमें से ये सारे के सारे जो मैंने हाईलाइट किए यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इट कैन गो ओनली हियर, जो मैं रब कर रहा हूं, बिकॉज इट हैज अ 1 1 ऑन अ बैक, ठीक है ना. सो अगर मैं पूछूंगा कोई सा भी, यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे कोई सा भी देखूंगा मैं, जैसे 0 0 है, इसको पीछे, इसको भी 0 0 पीछे है, इसको भी, ये सारे के सारे यहाँ होने वाले हैं, ठीक है ना. तो उसका मतलब ये, लेकिन यहाँ पे ये है कि मुझे इस पहले ब्लॉक में, अगर मेरा पहला ब्लॉक है, इसमें बहुत सारे जा सकते हैं. कौन कौन जा सकता है, जिसको पहली लोअर 2 बिट्स 0 0 होंगी, है ना.
इसमें जो दूसरा ब्लॉक है इसमें कौन जा सकता है, जिसको पहली बिट्स 0 1 होंगी, जिसको भी 0 1 पहले है, 0 1 0 1, यहाँ पर 0 1, वो जा सकता है इसमें। यानी कि इसका मतलब है कि फिर इसमें कौन, अगर मुझे बताना, पहले मैंने ये बताया कि इसमें कौन कौन जा सकता है, मैंने कि चेयर खड़ी की, मैंने कहा इसमें फैकल्टी जा सकती है, जिनको 0, मान लीजिए हमारे एनरोलमेंट नंबर में जैसे कुछ है या सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसमें लास्ट में 0 1 है, तो मैं वो जा सकता हूँ। जैसे मैं कहूंगा ये स्टूडेंट है, आपका एनरोलमेंट नंबर है ना, आपका एनरोलमेंट नंबर है लंबा सा 88 whatever, लास्ट में है आपको, जिसको लास्ट में आएगा 0, मैं कह रहा हूँ वो जा सकता है इसमें, खाली 0, ये चेयर, ये दूसरी चेयर, ये तीसरी, ये पांचवी, मैंने 9 चेयर्स खड़ी कर दी फॉर एग्जाम्पल। जिनको लास्ट में 0 आता है या 1 आता है, जिनको लास्ट में, वो पहले में जाएंगे, जिनको लास्ट में 2 आता है वो इसमें जाएंगे, क्योंकि जिसका रोल एनरोलमेंट नंबर होगा लंबा सा होगा एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, लेकिन लास्ट में होगा इसको 0 1 1 होगा लास्ट में, किसी को होगा 2 3, जब 9 आ गया फिर जिसको 11 है, जिसको लंबा सा वो एनरोलमेंट नंबर है लास्ट पर है 1 1 11 रोल नंबर, या किसी का रोल नंबर है 21, किसका नंबर है 31, आगे बहुत सारा है, लास्ट में क्या है ये 1, तो मैं कह रहा हूँ ये वाले बैठेंगे पहली चेयर पे, ठीक है। जैसे मैं अभी मैं देख रहा हूँ 59 है उबैद का रोल नंबर, उसके बाद 9 वाले और भी आ सकते हैं ना, इसको रोल नंबर 9 होगा, इसका 19 होगा, जिसका 29 होगा, वो सारे के सारे बैठने वाले हैं मान लीजिए इस ब्लॉक में। तो उसका मतलब है कि लेकिन एट अ टाइम कितने बैठेंगे, एक ही, एट अ टाइम कितने बैठेंगे। तो ये हो गया सवाल कि कौन बंदा किधर बैठेगा, कौन क्या मेमोरी का किधर बैठेगा। अब दूसरा सवाल क्या है कि क्या इसमें अब कौन बैठा है। अब मैं उबैद, फर्ज कीजिए उबैद, आदिल और आरिफा और उतूफा और मिसबा, ये 4 बंदे में यहाँ पे हैं, इन चारों का लास्ट में 9 आता है फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये चारों के चारों बैठ सकते हैं इसमें। अब क्वेश्चन बनता है ना कि इस वक्त कौन है वहां पे, मैं कह रहा हूँ अगर इनको कहीं बैठना है ये बैठेंगे इसमें, सिर्फ इस ब्लॉक में, क्योंकि डायरेक्ट मैप ने इसमें स्पेसिफिक ब्लॉक दिए। अब क्वेश्चन बनता है ना कौन है, अगर मुझे अब आ गया उबैद, अब मुझे देखना नहीं कि क्या उबैद उसमें है कि नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से क्योंकि वहां पे उतूफा भी हो सकती है, मिसबा भी हो सकती है, आरिफा भी हो सकती है और आदिल भी हो सकता है, क्योंकि इन सारे का रोल नंबर 9 है लास्ट में। यानी कि यहाँ पे जिसको भी 0 0 पीछे है, दे कैन ऑल बी हियर इन द फर्स्ट, यहाँ डेटा ब्लॉक में यहाँ पे होंगे वो, ठीक है ना, दे कैन बी हियर। अब कौन है, वो कौन बताएगा, द टैग, जो नेक्स्ट 2 बिट्स है। अगर टैग में 0 0 है तो यकीनन इसमें ये वाला बंदा है। अगर टैग में 0 0 नहीं था बल्कि ये 0 1 था, यहाँ पे टैग में 0 1 था, तो अंदर बैठा है ये वाला बंदा, अंदर ये वाला नहीं बैठा है, ये वाला बैठा है, ठीक है। अच्छा अगर 0 0 और किसको है, ये है 0 0, जिसको पहले 0 0, बिकॉज दे कैन गो इनटू दिस। अब अगर टैग है 1 0, अगर 0 0 नहीं है 1 0 है, तो ये दो नहीं बैठे हैं, ये वाला बैठा है इधर, ठीक है ना। सो मुझे टैग देखना पड़ेगा उसके बाद। तो पहली बात कि अगर मुझे डेटा ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, और 0 0 किसको है, इसको, और ये ढूंढना है। I don't have to go here or there. I can only have to go to the first block because they can only be here. पहली बात। अब दूसरी बात मुझे ढूंढना है कि मैं ढूंढ रहा हूं इस वक्त ये वाला बंदा, क्या ये इसमें है या नहीं, तो वो टैग बताएगा। अगर टैग में इसका जो लास्ट वाली 2 बिट्स है अगर वो है तो ये है उधर, है ना। अगर लास्ट वाली जो 2 बिट्स यहाँ पर है, अगर ये 0 1 यहाँ पे टैग में है तो यही बंदा उसमें है, अगर ये नहीं है तो इस वक्त इसमें ये नहीं है। क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ बेटा बोलो। Yes sir, yes sir. Sir, can you please repeat? Why not? स्पेसिफिक बताओ, स्पेसिफिक बताओ मुझे, रिपीट क्या करूं। The Tag. tags. टैग्स, ठीक कोई बात नहीं, मैं बता दूं, डोंट वरी, देयर इज सम चैट आल्सो coming. We are cementing and repeating. We can found out that by checking the tag. Utufa Gul is saying it. Very good. Utufa Gul is already giving the answers. That is nice. ठीक मैं बता रहा हूँ। पहले ये सवाल किसने पूछे, वो नाम बताया अपना, the girl and the boy both. Sir, Ehsan. एहसान, हाँ कहाँ है एहसान, एहसान मुश्ताक, Yes, sir. गुड। और गर्ल जिसने पूछा सवाल वो कौन थी, जो रिपीट कर रही थी, गर्ल। Snowbird. I can't see. Snowbird. Snowbird. What is snowbird? Snowbird, आपका कैमरा ऑफ क्यों है बेटा? Sir, sorry, this is my very first class. I didn't know. You have to keep camera on, otherwise I have to remove you, right? Do you understand?
Yes, sir. Sorry. So put on your camera. Now look here. Now look here. Tufakul saying thank you. Okay. Anyways, I am saying that there are two questions coming in my mind. कि अगर मेरे को कैश में मैंने डेटा डाला रैम से, मेरे दो क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन है कि भाई साहब कि जो रैम का ये जो रैम में से मैं डेटा डालूंगा वो कहाँ डालूंगा, ठीक है ना. तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट मैपिंग में ब्लॉक्स खड़े कर दिए, ठीक है ना. आप पहला दिन आ जाओगे, आज क्लास में हमारा एक हफ्ता हो गया कैश पढ़ते हुए, ठीक है ना. सो देयर विल बी कन्फ्यूजन. सो वी हैव टू गो फॉरवर्ड आल्सो ना, कि आप एब्सेंट बैठोगे, आप पढ़ोगे ही नहीं, फिर बोलोगे सर मुझे समझ नहीं आता. वो वैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना. यू हैव टू कम अप, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है. तो आई मे बी रिपीटिंग दीज थिंग्स, बट it doesn't give you will stay absent and then come, सर मेरा आज पहला क्लास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे फिर से समझाइए. that way we can't work with that way, right? So you have to come up, and video recordings are there. If agar at all you have missed some class, you should watch video recording in the evening or someday, okay. And you have to come regular, and because attendance is the marks, keep that thing in mind. Your internal marks will be on the basis of attendance and class performance. That is why I'm watching who is saying what, okay, because I remember, so that I make a list who is the best student among you should get the best marks, and rest who are not best students should not get the best marks. We should make it sure that they are not getting like फिर online में cheating कोई करता है, फिर उसको जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको तो कम मार्क्स आते हैं, जिसको कुछ नहीं पता होता वो cheating करके मार्क्स लाता है और उसको टॉप में आ जाता है. That should not happen. The internal marks should be totally on the basis of class performance, on the basis of what he is giving in class. Is he regular? Is he working? Not like he is doing cheating at the end and getting marks. Now look here. I am saying two questions. One question, which block of the memory will go into the which block of cache? For that I say the first two bits. If for example it is the first two bits is 11 LSB 11, they will go into the 11 block of the cache. Simple. जिसको भी 11 होगा, यानी कि इसको 11 है, इसको 11 है, इसको 11 है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये दिख रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये ठीक से दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 11 अगर मैं ये दिखेगा नहीं फिर समझाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा ना. जो जिसको भी 11 है पहली दो बिट्स वो जाएंगी इस 11 में. जिसको पहली दो बिट जैसे 00 होंगी वो 00 में जाएंगी. जिसको पहली दो बिट 01 होंगी वो इसमें जाएंगी. तो ये क्वेश्चन हो गया कि कौन किधर जाएगा, ठीक है ना. अब दूसरी बात है कि अगर मैंने कहा ये 00 है, स्नोबर शौकत आपने कैमरा नहीं खोला अभी, यू शुड ओपन अप द कैमरा. अब मैं आपसे सवाल पूछना है यहाँ पे स्नोबर रफीक कि मैं कह रहा हूं ये 00 है, ठीक है. क्या इसमें कैश का रैम का एक ही बंदा एक ही ब्लॉक जाएगा या बहुत सारे ब्लॉक जाएंगे? कोई भी बता सकता है? तो जिसको भी एंड पे 00 होगा, जिसको भी होगा, है ना. तो बहुत सारे जा सकते हैं, जैसे ये भी जा सकता है, इसको भी 00 ये भी जा सकता है, इसको भी 00 ये भी जा सकता है, इसको भी 00 ये भी जा सकता है. अब ये बोलना कि मैं ये सवाल का आंसर आ गया कि कौन जाएगा किधर. अब दूसरा है कि उसमें इस वक्त कौन है, इन चारों में से कौन है इस वक्त, वो कौन बताएगा? वो बताएंगी इसकी ये वाली दो बिट्स, टैग, दैट्स कॉल्ड द टैग. ठीक है बेटा, स्नोबर रफीक समझ आ रहा है? वो टैग हमने यहाँ स्टोर किया है, वो टैग हमने यहाँ. तो पहला जो है स्नोबर रफीक आप माइक खोल के रखो, तो कैमरा आप कल से करना. स्नोबर शौकत है, श्योर सर. ओके स्नोबर शौकत आप माइक खोल के ही रखो, ठीक है बेटा. कल कोई बात नहीं, आप कल से कैमरा ऑन करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होगी वगैरह वगैरह. तो आई विल गिव यू दैट रिलैक्सेशन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट जस्ट लर्न हियर. मैं कह रहा हूं कि ये 00 है, यहाँ पे एप्पल है. क्या है इसमें? डेटा एप्पल है. इस 00 में कैट है, इस 00 में रैट है, और ये वाला 00 बैट है, ठीक है. और यहाँ पे टैग इसको 00 है ना, मैं 00 नहीं लिखता हूँ, मैं टैग इसका इस वाले का लिखता हूँ जो कि 11 टैग लिखता हूँ. आई एम पुटिंग अ टैग हियर 11. So that means right now I am dealing with this 11. That means I am putting bat inside the data. Okay. अब एड्रेस आ रहा है एप्पल वाले का. एप्पल का एड्रेस क्या है? 0000. The first two bits I will see first. CPU wants Apple. Okay. Is it in a cache or not?
So what we will see? You see for first two bits. First two bits will tell us what? Snowball. It will tell us about the index, also called as a line. What does that mean? कि कौन सा block, ये किस block में हो सकता है? पहले block में। It can only be in the 0-0 block and none other than that. ठीक है? So CPU will only, where will the memory management unit will see it? It will try to fetch it in the first block. ठीक है? क्योंकि इसकी रिजर्व जगह सिर्फ पहला ब्लॉक है. अब दूसरा सवाल क्या है? क्या ये वहां है या नहीं? पहला सवाल था कि किधर होगा ये इधर होगा. मैं बीसीए के बच्चे को ढूंढ रहा हूं, उबैद को. मुझे पता है कि ये बीसीए के क्लास में हो सकता है. अब दूसरा सवाल क्या है? मैं उधर गया, मैं एमसीए के क्लास में नहीं गया, मैं बीसीए फर्स्ट के क्लास में नहीं गया, मैं बीसीए फोर्थ के डायरेक्ट क्लास में गया, तो मुझे पता है ये इधर ही होने वाला है, उबैद. अब दूसरा सवाल क्या है? क्या उधर है या नहीं? दूसरा सवाल है ना कि क्या उधर है या नहीं, क्या इसमें बैठा है या नहीं. Which bits will tell us? The rest two bits. The rest of these two bits 0-0 will tell us whether it is there or not. अगर ये 0-0 है, ये दो बिट्स 0-0 है ना, Yes तो sir. यहाँ पे टैग में क्या है बैठा? 1-1. सो उससे पता चलेगा नहीं उधर नहीं है, तो इट्स अ कैश मिस. अगर यहाँ पे भी जैसे इसने पहले लिखा था 0-0, जो इसने ऑलरेडी लिखा था, जो कि स्लाइड में था, ठीक है ना, उसमें 0-0 ही था. ठीक है, जब अगर उसमें 0-0 है तो टैग मैच हो गया. तो 0-0 अगर है, टैग मैच हो गया, दैट मींस इसमें वही डेटा होगा जो इसमें था, दैट इज एप्पल. फिलहाल हमने इसका नाम रखा ना एप्पल. Yes sir. दैट मींस एप्पल मस्ट बी देयर. सो देयर आर टू क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा, वो बताएगा कौन सी बिट, पहली दो बिट्स, एंड दिस इज गिविंग अस द इंडेक्स. सो इंडेक्स टेल अस कि which block of cache, and second two bits will, that is the tag. Tag will tell us whether that person is there or not, that data is there or not. Does it make sense now? Yes sir. Thank you. कोई बात नहीं बेटा, आप पूरा बताओ. अगर नहीं समझ आ गया, I will try to explain again. But I wish I am inspiring you to, you know, be regular and learn. Okay? Yes. Your snowbird जो मुझे मैसेज कर रही थी, the CR1. Yes sir. Actually हमें घर पे ताज़ियत थी, इस वजह से मैं I नहीं got दे it. कोई बात नहीं, कोई होते हैं, ये चीजें होते हैं. I understand that. That's why I create videos, because I take care of also those students who are absent. Because for me, every student is important, and I want everyone to learn. Okay, so you guys, if you are understanding not, you can again tell me. अब टैग और इंडेक्स में किसी और को प्रॉब्लम है? मोमिन आप बताओ मुझे. नहीं, माइक ऑन करो ना यार. नो Chat सर, पे नो लिख रहा है प्रॉब्लम सर. सर, आप Good. समझ आ गया. एहसान मुश्ताक, what do you say? Yes, sir. Muhammad Hussain, Adil Rasool, they are not talking. Kazim is talking all the time. Ubaid, Otufa, they are talking all the time. Misbah, you tell me. Snowbird, you should be all the time on with the camera and also with this, with the mic. Muhammad Harsh, khabar kya dalil hai? Otherwise, he's such a nice kiddo. Misbah, समझ आ गई ये बात? Sir, direct mapping is faster than associative mapping. Direct mapping is not faster than associative mapping, क्योंकि associative मैं- mapping में क्या होता है कि there is a dedicated circuit on the back. Yes sir. डेडिकेटेड सर्किट से क्या गया, आपने टैग दिया, वो फटाफट आपको निकालेगा, बट इट विल बी कॉस्टली. एसोसिएटिव sir, मैपिंग इज कॉस्टली, Costly. उसमें क्योंकि उसमें सर्किट है ना, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, ये देखने हैं, यहाँ पे देखने हैं, कंपेयर करना है, ये कंपेयर करना है, इसमें कंपैरेटर लगे ना पीछे से, Yes sir. हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. एसोसिएटिव मैपिंग इज फास्ट, दैट्स व्हाई वी हैव मूव्ड फ्रॉम दिस टू एसोसिएटिव मैपिंग, बिकॉज़ तो ऑफ कंप्यूटर, स्पीड. इसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ है, इसमें उसमें हर जगह कंप्यूटर लगा हुआ है. उसमें हर जगह में, यहाँ पे लेकिन ये जो डायरेक्ट मैपिंग है, इसमें थोड़ी सी आसानी होगी हमारे पास, इट विल बी सिंपल. हाँ, क्योंकि ये हमें इसमें आइडेंटिफाई करना इजी होता है. हाँ, इसमें आइडेंटिफाई करना इजी होता है, लेकिन तब भी टाइम लगेगा इसमें ये कंपेयर करने में. लेकिन सर्किटरी एंड ऑल विल बी वेरी सिंपल, इट विल बी सिंपल टू डू. ठीक है, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये है कि दीज कैन गो ओनली हियर. अगर बाकी खाली भी है तो हम फिर भी अटके हैं, है ना. मेरे पास 4 कुर्सियां हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ एक कुर्सी पे आप सारे बैठ सकते हो. अब Yes, sir. 4 बंदे आ गए, ठीक है, आप में से, तो आप, मैं क्योंकि मैंने आपको लिमिट किया है ना कि आप सिर्फ इस कुर्सी पे बैठ सकते हो, Yes sir. दूसरी कुर्सी पे बैठेगा बीसीए सेकंड वाला, एंड सो ऑन. तो हालांकि Yes, मेरे पास जगह है, कुर्सियां सारी खाली है, क्योंकि ना बीसीए फर्स्ट आया है, ना बीसीए सेकंड आया है, ना बीसीए थर्ड आया है. तो फिर भी मैं अटका हूं, मैं आपको कह रहा हूँ वेट कर रहा हूँ, मैं भी एक ही बंदा को रख रहा हूँ कुर्सी पे, बाकी जाया. ठीक है ना.
अब Yes, sir. हम एसोसिएटिव मैपिंग जो पहले उससे पहले हमने कहा कि हमारे पास स्पेशल लोकेलिटी होती है। स्पेशल लोकेलिटी में यानी कि मुझे अगर इस लाइन ऑफ कोड पे काम करना है तो बाकी लाइंस ऑफ कोड भी काम करना है, बाकी लाइंस ऑफ sir. कोड ही उसके बाद आएंगी। यानी कि अगर मैं इस वक्त एमसीए बीसीए फोर्थ पे काम कर रहा हूँ, बीसीए फोर्थ बच्चों के ऊपर, ये बहुत इसमें जाहिर है कि इसके बाद काजिम के बाद आफरी नहीं आएगी, उसके बाद इतरत आएगी, यानी कि बीसीए फोर्थ के ये बंदे आएंगे। Yes, sir. सो आई शुड लोड मोर फ्रॉम दिस फंक्शन, और दिस अगर मेरी कोई फंक्शन है उसमें कोड्स है, उसके साइड के जो जितनी भी चीजें हैं वही एग्जीक्यूट होंगे ज्यादा मुमकिन है। तो मुझे वही सारी चीजें ज्यादा लानी चाहिए और वो यहाँ पे जगह नहीं है। उसके लिए Yes, मैंने sir. क्या कहा, मैंने कहा कि आप डेटा का एक ब्लॉक मत दे दो, अब दो ब्लॉक दे दो। पहले वो कर किया ना हमने, ये मैंने पढ़ा है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिवाइजिंग Yes, sir. Yes, टू sir. सीमेंट इट। मैंने कहा नहीं, अब एक ब्लॉक मत दो, अब दो ब्लॉक। ठीक है, बिल्कुल sir. डज इट मेक सेंस? टू गेट Yes, sir. टू कवर द स्पैचुअल लोकेलिटी। ये तो हो गया ये वाला 0 0 वाला पहला ऑर्बिटो टैग है ना। और Yes, हमारे sir. साथ साथ वैलिड भी होता है कि क्या वो बंदा है वहां या नहीं, वो वैलिड भी है होता या है। नहीं वैलिड एक बिट वैलिड की होती है जो 1 या 0 होती है, ठीक है ना, तो वो Yes, भी sir. होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कैश हिट कैसे होगा कि जितना तो, भी हमारे पास, हाँ यस क्वेश्चन। सर जो अभी आपने वो चार्ट दिखाया जिसमें कैशे और रैम दिखा के था, हाँ? तो वहां पे पहले इंडेक्स बना के था जिसमें हमारे दिखा के था 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ हाँ तो वहां पे दूसरा दिखा के है टैग वाला जो हाँ। बॉक्स बना के। जी जी हाँ तो वहां बताइए। पे टैग वाला में भी सेम होना चाहिए था ना, लाइक क्योंकि जो लास्ट 2 बिट्स होनी चाहिए इंडेक्स के बगैर, तो वो हाँ भी हो गया तो 0 0 0 1 1 0 या 1 1, लेकिन वहां पे टैग में कुछ और लिखकर था। सो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया जो इससे पहले आप स्टार्टिंग में वो भी कैन चार्ट। यू हाँ रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक सेकंड मैं हाँ आराम सर से ये इसको ब्रेक करेंगे आराम से। वेट लेट मी हेल्प टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आएगा, मैं ऐसे इसको पहले रब करूंगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप पहला आपका ये था कि भाई यहाँ पे टैग है, इंडेक्स है, ठीक है ना। इंडेक्स मींस कि कुर्सी नंबर कौन सी, इंडेक्स मींस कैश, जो ये मेरी कैश है, इस इंडेक्स नथिंग इज नथिंग बट सेइंग दैट दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर और भी होते, ये 4 था, ये 5 था, 6 था, 7 था। सो इंडेक्स इज ओनली नंबरिंग ऑफ द कैश ब्लॉक्स। अब 0 1 2 लिखो आप, या बाइनरी में लिखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। अगर और भी बड़ी होती तो 3 बिट्स का इंडेक्स होता है 0 0 0 अप टू 1 1 1। अगर 16 बिट होती तो 4 बिट का इंडेक्स होता है फ्रॉम 0 टू 15, ठीक है। तो इसका सर मतलब ये, हम इसमें करते थे ना एक मिनट पहले मुझे समझ बताने दीजिए। ये मेरा कैश है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये भाई 0 वाली 0 0 कैश है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ 4 लिए है सिंपल समझाने के लिए, लेकिन कैश बहुत बड़ी होती है ना। तो फिलहाल जो हमारी ये कैश है, ये पहला उसका डब्बा है, पहला ब्लॉक है, इसका इंडेक्स है 0, ठीक। इसमें कौन जा सकता है? इसमें 0 0 वाली जा सकते हैं सर, या तो वो ये जा क्लियर सकता है। है, एक मिनट पहले मुझे बताने दो। पहले ये जा सकता है, ये जा सकता है, ये जा सकता है, लेकिन अब इनमें कौन है उधर? अब इनमें इन चारों में से कौन है उधर? तो वो ये वाली बिट्स बताएंगे। अगर इसका 0 0 होगा, जैसे ये वाला है, ये वाला है, इसको 0 1 है यहाँ से। अगर ये वाला है, इसको 1 0 है यहाँ से। ये 0 0 वाला था ना, इसको 1 1 है यहाँ से। क्या अब 1 0 उधर है, 1 1 उधर है, 0 1 उधर है, या 0 0 उधर है? अब आया वो समझ? टैग बताएगा। तो वो सर टैग वो में होना क्लियर चाहिए। है वो। हाँ, तो सर वो अब क्वेश्चन है, वो क्लियर था। ओके, उसके अब बाद मेरा क्वेश्चन है जो हम यहाँ से बना रहे हैं, इंडेक्स फिर टैग और फिर डेटा। तो Yes. डेटा हम दिखा सम ऑफ इनका टैग एंड इंडेक्स। नो डेटा इज सर व्हाट लास्ट नो नहीं, दैट इज एड्रेसिंग। तो टोटल हम करते ना इन दोनों का, दैट इज एड्रेसिंग। डेटा इज व्हाट यू, वो आपका सी का प्रोग्राम हो सकता है जो वहां था, जो आप फैच कर रहे हो। डेटा इज मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको देखना है इसमें 0 0 वाले ब्लॉक में पहला वाला हमें ढूंढना है कि 0 0 0 0 0 इस ब्लॉक में है। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। मेरा डेटा है बीसीए के स्टूडेंट्स, जो 0 0 टैग इंडेक्स है, ये बता रहा है किधर है बैठे हैं, इस ब्लॉक में किधर है, कैश में किधर है। लेकिन मैं ओतूफा ढूंढ रहा हूँ, डेटा इज ओतूफा। मेरा जूम का प्रोग्राम है, ये जूम चल रहा है ना इस वक्त, कोड इज ऑफ द जूम का डेटा है, दैट इज इन द कैश, इनसाइड द डेटा पार्ट इज दैट जूम। लेकिन किधर है वो ये दो बताएंगे।
एक मिनट ये जो आप यहाँ जो आप ये बता रहे थे ना, ये बता रही थी मैं, जो हाँ आप ये बता रहे हो ना अभी, आप ये जो मेन जी। मेमोरी जो है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, उसकी एड्रेसिंग अब टोटल निकालेंगे ना, टोटल 4 बाइट्स वो होंगी, इंडेक्स बाइट्स एंड उसका टैग मिला के, ठीक है। हाँ एंड दिस विल टेल मी दैट है भाई साहब ये वाला ब्लॉक है, लेकिन इसमें बैठा कौन है, इसमें डेटा 0 चाहिए ना? 0 0 0 डेटा, नहीं हाँ नहीं, इसमें ये इसमें जो 0 0 नहीं है, इसमें वो डेटा है जो मेरे को जरूरत है। इस ये अच्छा, जो ठीक। 0 जो ये जो 0 0 0 0 है, ये इसका एड्रेस है। ओके फाइन। Lane A, house number 44 is my address. Now combining the lane and house number, give me the exact address. But who are you finding? The Junaid sir, not that address. अरे क्या हो हारिस साहब इस मोइन कोदर का चोस, सर एक्चुअली बाहर हूँ आज, सो इसलिए। कोई बात नहीं। Otufa, is it clear? यस सर। वेरी गुड। देखिए मेरी बात आप सुने, जो ये होता है ना लाइव क्लास का यही फायदा आता है जो अतुफा और मैं अभी कर रहे हैं, वरना वीडियोस आर आल्सो ऑन द यूट्यूब, राइट, एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो आई कैन हैव, बट लाइव क्लास का यही है इंटरेक्शन। हाँ कौन, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, he was calling me, yes, class will be at 12, okay? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अब 12 नहीं, 12 से ना he called me, yeah. हम 12 से 12:15 में देंगे, ठीक है ना, because I need a cup of tea and all, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। Sir, can't we say like this? Index is the student's name and tag is its surname, and we are finding the address of the particular student by the surname. If the student is having the same name and we are finding them with their index, that is surname. We can't say like that. That could be a good example, because हम कह रहे हैं कि भाई जिसका surname whatever is there, for example